So, dear students, here we are discussing about the applications of biology for the welfare of mankind. So, the mankind have different problems regarding with their health, regarding with their food. There are so many problems, but there, according to your course, there is the problem of health and food. So, the mankind when suffer from different diseases like polio, like measles, mumps, hepatitis, cancer. Just you know that these days coronavirus and other viral diseases in the ancient times and bacterial diseases in the previous time. You know very well, like typhoid, TB, different diseases. So, the first method to overcome these diseases is the immunization. What is immunization? Immunization is a process whereby a person is made immune or resistant to an infectious disease, typically by the administration of a vaccine. किसी इंसान के अंदर, किसी बंदे के अंदर वैक्सीन को इंसर्ट किया जाता है और उसके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है। उसको बताया जाता है कि फलां किस्म का ऑर्गेनिज्म आ रहा है, उसको आपने डिस्ट्रॉय करना है। वैक्सीन स्टिमुलेट the body's own immune system to protect the person against subsequent infections or diseases. वैक्सीन क्या है? वैक्सीन एक substance है. Vaccine is a substance used to stimulate the production of antibodies and provide immunity against one or several diseases. Prepared from the causative agents of a disease, its products are a synthetic substitute treated to act as an antigen without inducing disease. वैक्सीन क्या है? वैक्सीन एक मटेरियल है, एक सब्सटेंस है जिसके अंदर हम वही ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर इंसर्ट करते हैं, पर उसका फॉर्म इतना वीक होता है कि वो डिजीज काज नहीं कर सकता। जस्ट लाइक दैट पोलियोमाइलिटिस की डिजीज है, तो उसकी जब वैक्सीन हम बनाते हैं तो उसकी वैक्सीन में हम जो पोलियोमाइलिटिस का वायरस ऐड करेंगे तो वो वायरस इतना म्यूटेंट होगा, इतना वीक होगा कि वो अपनी ग्रोथ, जो मतलब उसकी नस्ल है, वो नहीं बना पाएगा, वो नस्ल नहीं बना पाएगा। तो इस बुनियाद पे वो डिजीज काज नहीं कर सकेगा, बट इट एक्टिवेट्स अवर इम्यून सिस्टम, वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। सो वी आर discussing about now. Vaccine was first introduced by Edward Jenner in 1975. So some diseases which are not vaccine, and these diseases are controlled by antibiotics. So what are antibiotics? Antibiotics basically are the chemical substances which inhibit or retard the growth of microorganisms. Sometimes antibiotics destroy or kills the microorganisms inside the living system. The major antibiotic is the penicillin, which was obtained from Penicillium notatum, a fungus, and this antibiotic function on bacteria. Some other diseases like cancer and other tumors which are not treated by the antibiotics, these are treated with the radiotherapy.
what is radiotherapy? Radiotherapy is the treatment of a disease or killing of the tumor cells or cancerous cells which are uncontrollable with the help of radiations. उनको हम radiations के ज़रिए ख़त्म करते हैं. हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन होते हैं वो, तो उनको हम इस्तेमाल करके उनके सेल्स को हम ख़त्म कर देते हैं, जला देते हैं. सो रेडिएशंस का बहुत बड़ा रोल है मेडिकल साइंसेज में, रिसर्च के हवाले से या डिजीज़ को कंट्रोल करने के हवाले से. तो when we use the low dose or the low frequency of the radiations in the X-ray or in other techniques like ultrasound, CT scan and other techniques, etc. And the disease which are controlled with the chemotherapy like AIDS or some type of cancers are treated with the chemotherapy. कीमोथेरापी क्या है? कीमोथेरापी ये है कि हम किसी भी डिजीज़ को, ऐसी डिजीज़ जो नॉर्मल एंटीबायोटिक से कंट्रोल नहीं की जा सकती, उनको हम किल करते हैं, कट करते हैं, ख़त्म करते हैं. किसके ज़रिए? केमिकल्स के ज़रिए. वो केमिकल्स क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स होती हैं जो कि उनको ख़त्म कर देती हैं. इसके अलावा a constant problem of mankind, सॉरी यहाँ पर प्रॉब्लम का वर्ड मुझसे मिस हो गया है. A constant problem of mankind has always been to get food. सबसे बड़ा जो इंसान का मसला रहा था पहले सेहत का, तो वो काफ़ी हद तक हल हो चुका है और काफ़ी हल हो भी रहा है. उसके बाद फूड है. फूड का प्रॉब्लम इंसान के साथ मुस्तकिल तौर पे रहता आया हुआ है. तो उसके हवाले से इंसान ने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर करना शुरू किया है. सबसे पहले हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स एक टेक्निक है जिसमें हम वाटर बेस्ड सॉल्यूशन बनाते हैं, जो उसमें प्लांट्स ग्रो करवाते हैं और न्यूट्रिएंट्स सॉल्यूशन होता है. हाइड्रोपोनिक्स डज नॉट यूज सॉइल, उसमें मिट्टी वगैरह यूज नहीं होती, सिर्फ वाटर होता है और कुछ सपोर्टिंग मटेरियल्स होते हैं. हाइड्रोपोनिक्स वाज डेवलप्ड इन टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स ऑन द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, स्पेशली द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स किससे कहते हैं? वो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स थोड़े से मिकदार में लेता है, उनको हम कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को मेजर करने के लिए कि कौन सा प्लांट कितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को यूज़ करता है, उसकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, इन सब चीज़ों को मेजर करने के लिए भी हम हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं. हाइड्रोपोनिक्स के कुछ फ़वाइद भी हैं, एडवांटेजेस हैं. यू कैन ग्रो एनीवेयर, ये कहीं पर भी आप ग्रो करवा सकते हैं हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के ज़रिए. यूजेस 20 times लेस वाटर देन द सॉइल बेस्ड गार्डनिंग. तो आप मतलब थोड़े से पानी पे जितना आप यूज़ कर सकते हैं उसमें करेंगे, मिट्टी के बनस्बत उसमें कम ही यूज़ होगा, 20 times कम यूज़ होता है. योर एनवायरनमेंट इज स्टीराइल विच मीन्स नो पेस्टिसाइड्स. इसमें कोई भी पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं किया जाता. ये कंट्रोल के अंदर ही होता है पूरा का पूरा सिस्टम इसका. यू विल यूज़ 20% लेस स्पेस फॉर ग्रोइंग. उसमें 20% लेस स्पेस यूज़ होता है मतलब ग्रोइंग के लिए, जबकि बाकी ग्रोइंग के लिए ज़्यादा स्पेस लेते हैं. आफ्टर दैट द सिस्टम वाटर कैन बी रीयूज. जो सिस्टम में वाटर यूज़ होगा वो रीयूज हो सकता है. अलो यू टू कंजर्व वाटर, हम वाटर को कंजर्व भी कर सकते हैं. इट कंट्रोल्स वीड्स एंड सॉइल डिजीज प्रॉब्लम्स. वीड्स जो गैर ज़रूरी पौधे निकल आते हैं ज़मीन से किसी फसल के साथ, तो वो भी नहीं आएंगे, वो भी ज़ाया हो जाएंगे, मतलब नहीं उगेंगे इसके साथ. सॉइल डिजीज़ प्रॉब्लम्स भी इसमें नहीं होंगे क्योंकि सॉइल यूज़ ही नहीं होती. एरिया रिक्वायर्ड फॉर कल्टीवेशन इज रिड्यूस्ड. जो कल्टीवेशन के लिए बड़ा सा एरिया चाहिए होता है
वो इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं होता। छोटा सा एरिया हो उसमें भी यूज़ हो सकता है, मतलब हाइड्रोपोनिक्स हम कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन विच ऑफ द मिनरल एलिमेंट्स आर एसेंशियल। सबसे अहम बात कि हम किसी भी प्लांट की मिनरल रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर।